ਸੋ ਹੈ ਗਾਇਜ਼ ਸਭ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਨਾਲ ਅੱਜकल ਕੀ प्रॉब्लम चल रही है, लेट्स चेक इट। म्यूजिक एडिक्ट दिस साइड। सो भाई ये वीडियो है ना कोई ऐसी खास फैक्ट्स वाली या जैसी मैं बनाता हूँ वैसे नहीं होने वाली। सिर्फ मेरे एक दिल में कुछ चीज़ें थी, कुछ बात करना चाहता था मैं तुमसे। हाँ, क्योंकि देख सकते हो ਤੁਸੀਂ ਐਤਕੀ ਲਾਈਕ ਵਿਊਜ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੈਪ ਡਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਪੋਟੀਫਾਈ ਰੈਪ ਡਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਟਰੈਕਸ ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਉਹੀ ਆਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਬਟ ਰੈਪ ਡਬ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੋਊਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਸੁਣਿਆ, ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੋਟੀਫਾਈ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਘੱਟ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਯੂਟਿਊਬ ਵਾਲੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾਮ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪੋਟੀਫਾਈ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘੱਟ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਬਾਈ ਦੇ ਗਾਣੇ ਪਲੇਲਿਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵਾਈ ਸਪੋਟੀਫਾਈ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਦੇ ਗਾਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਟੀਮ ਕਿੱਥੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੈ। ਕਈ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਸਪੋਟੀਫਾਈ ਪਲੇਲਿਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਦੇ ਗਾਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਦੇ ਗਾਣੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਆਏ ਆ ਨਾ 3-4, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਦਿਖੇ। ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਪਲੇਲਿਸਟ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵਰਕ ਆਪਣਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ। ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਪੀਟ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਗਾਣੇ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਡਰੀਪੀ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਸੁਣ ਲਿਆ ਗਾਣੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਘਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਿਸਨਿੰਗ ਘਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਗਾਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗੀ ਚੀਜ਼, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ 'ਚ ਇਹ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਫਰਕ ਪਿਆ ਬਾਈ ਦਾ ਕਾਫੀ। ਐਤਕੀ ਬਾਈ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਨੰਬਰ 1। ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਰਨ ਇਜ਼ ਨੰਬਰ 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਆਪਣੇ 'ਚ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਹੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ, ਹੈ ਨਾ। ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਟਰੀਮਾਂ ਹੋਣ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਦਾ ਵੀ। 1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਪਲੱਸ ਸਟਰੀਮਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਜੇ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ 2.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸਟਰੀਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। वो करने वाला हूँ। वैसे तो मैं सोच रहा था कि इंस्टा पे स्टोरीज में ही ये चीज़ बोल दूँ, लेकिन वहाँ पे फिर इंटरेक्ट नहीं कर पाते हम एक दूसरे से। तुम कमेंट कहाँ पे करते हैं, तो इसलिए इस वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ। सो भाई इस साल का स्पॉटिफाई रैप तुमने शायद देख ही लिया होगा। सिद्धू भाई के अकाउंट से स्टोरी भी शेयर हो गई थी कि इस साल उनकी टोटल 1.23 बिलियन स्पॉटिफाई स्ट्रीम्स हुई है, जो कि वैसे तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक चीज़ बता दूँ कि 2018 से लेके पिछली साल तक 2023 तक 6 साल की स्ट्रीक इस साल टूट चुकी है। सिद्धू भाई लगातार 6 साल तक DHH के इंडिया के पंजाब के नंबर 1 आर्टिस्ट बन रहे थे मोस्ट स्ट्रीम के मामले में। अब वैसे तो यार ये कभी ना कभी ये स्ट्रीक टूटनी ही थी। 6 साल चल गई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसा कि तुम्हें पता है लिमिटेड गाने 60-70 गाने बचे हुए हैं, तो बेशक 10 साल बाद टूटती, लेकिन कभी ना कभी ये स्ट्रीक टूटनी ही थी। और इस चीज़ की मुझे तो पर्सनली खुशी भी बहुत है कि सिद्धू के अलावा अगर कोई आर्टिस्ट नंबर 1 पे आया है तो वो मोस्ट डिजर्विंग है। इस साल के मोस्ट स्ट्रीम्ड आर्टिस्ट ਕਰਨ ਔਜਲਾ। ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ ਕੁਛ ਲੋਕ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ, ਬਟ ਕਰਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਰਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਲਾਈਕ ਸਟਰੀਟ ਡ੍ਰੀਮਸ ਆਈ ਆਪਣੀ, ਫਿਰ ਫੋਰ ਮੀ ਆਈ ਵਿਦ ਸਿੰਗਲ ਟਰੈਕਸ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਹੁਣ ਤੋਬਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਏ ਹਾਏ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਟਰੈਕ ਆਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਨਿੰਗ ਸਪੀਚ ਵੀ ਆਇਆ ਇਸ ਸਾਲ, ਲਾਈਕ ਗੋਇਨ ਆਫ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਵੇ ਵੀ ਆਇਆ। ਸੋ ਕਰਨ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਟਰੀਮਸ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਣੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ 4 ਗਾਣੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ 2 ਐਲਬਮਾਂ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਐਂਡ ਹੀ ਗੋਟ 1.62 ਬਿਲੀਅਨਸ। ਬਟ ਸਟਿਲ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਦੇ ਫੈਨਸ ਕਿੰਨੇ ਲੋਇਲ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਈਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਲੋਜ਼ ਆ 1 नंबर ਦੇ, देख लो। सो भाई उनके लिए तो बहुत खुशी है मुझे, बट मुझे जो चीज़ चुभी ना, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिस चीज़ को लेके थोड़ा सा दिल टूट गया कि करण भाई ठीक है यार, आई एम सो हैप्पी फॉर हिम यार, बहुत अच्छी बात है कि वो बंदा फर्स्ट पे आया। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि पिछली साल सिद्धू भाई की स्ट्रीम थी टोटल 1.4 बिलियन, और इस साल उससे भी 130 मिलियन घट गई है स्ट्रीम। ये नंबर मायने रखता है। अब एक ना एक दिन तो और किसी को तो नंबर 1 आना ही था यार, वो तो दिक्कत वाली बात ही नहीं है, पर नंबर इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन जितनी पिछली साल स्ट्रीम थी सिद्धू भाई की 1.4 बिलियन, वो इस साल मेंटेन नहीं हो पाई, वरना हाई इवन के मंथली लिसनर्स 35
ਥੋ ਜੀ ਜੋ ਓਵਰਆਲ ਲਿਸਨਰ ਸੀਗੇ ਉਹ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, बट स्ट्रीम्स घट गई। हाई नंबर जा रहे सारे आर्टिस्ट के, बस एक सिद्धू भाई ही है जिनके नंबर्स उल्टा घट गए। तो इसे अगर ढंग से सोचोगे तो भाई बहुत सोचने वाली बात है कि उल्टा नंबर्स घट गए, बढ़ने की तो बात अलग ही है। अब इसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि इस साल टोटल वैसे तो एज मेन आर्टिस्ट तो सिर्फ 2 ही गाने आए हैं टोटल, हाँ वैसे 4 आए हैं, डिलेमा, अटैच, ड्रीपी एंड 410, लेकिन एज मेन आर्टिस्ट तो सिर्फ 2 ही गाने आए। 2 ही गाने आए हैं। तो एक होर सब तो बड़ी प्रॉब्लम डिलेमा पहले ही सबने सुन लिया सीगा, तो ਉਹਦੀ स्ट्रीम्स ही नहीं हुई गाने दियाँ। अटैच एंड ड्रीपी, और ड्रीपी भी इसलिए कर दिया गया रिलीज क्योंकि वो 1-2 दिन पहले लीक हो गया था, वरना उसका भी कोई प्लान नहीं था, सिर्फ अटैच ही गाना आया इस साल। बाकी वैसे दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो थोड़ी प्राउड वाली भी बात है कि सिद्धू भाई ने इतना फ्यूचरिस्टिक काम करके दे रखा है ऑलरेडी, इतना पहले ही भाई बिना मैनेजमेंट की हेल्प के भी। वो बंदा लगातार 2 साल से मोस्ट आर्टिस्ट बन रहा था, लेकिन इस साल जाके उसके नंबर कम हुए हैं। तो भाई उस बंदे की खुद की ही इतनी हाइप थी कि पिछले 2-2.5 साल से तो वो खुद के ही काम से इतना ज्यादा चल रहा था विदाउट एनीवन्स हेल्प। तो भाई अब मैं ये चीज़ नहीं बोल रहा कि अब ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਟੀਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ कि भाई एक साल में ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਇਹ YouTube ਤੇ ਕਰੇ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਚਲਾਓ ਚੇਂਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਟੀਮ, हैशटैग चेंज सिद्धू मूसेवाला टीम, ये चीज़ होनी चाहिए ब्रो। बहुत सारी गाने रिलीज करने लग जाओ, लेकिन अगर सिद्धू भाई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ सोचोगे तो भाई उन्होंने तो 2020, 21, 22 उस साल के हिसाब से, उस म्यूजिक के हिसाब से अपने गाने बना रखे हैं ना। वो तो भाई उसका फ्यूचरिस्टिक विजन है कि अभी तक वो गाने हमसे रिलेटेबल है, अभी तक वो अच्छे साउंड कर रहे हैं। वरना तुम्हें लगता है कि हमारे म्यूजिक प्रोड्यूसर से किड को छोड़ दो तो वो आज से 20 साल बाद जब ये गाने रिलीज होंगे तो वैसा उस हिसाब का म्यूजिक चेंज कर पाएंगे उन बीट्स को। तो गानों को बहुत ज्यादा रोक के रखना भी एक प्रॉब्लमेटिक चीज हो सकती है, प्रॉब्लम आगे खड़ी कर सकती है, क्योंकि फिर गाने पुराने साउंड होने लग जाएंगे। बट चलो इस चीज को भी छोड़ देते हैं कि भाई उस बंदे ने भाई कॉम्पोजिशंस और अपने वोकल्स इतने फ्यूचरिस्टिक थे कि वो तब भी चल जाएंगे, मान लेते हैं सारी चीजें। बट इतने ही गाने जितने रिलीज कर रहे हैं उतने ही कर लो। मैं मैनेजमेंट वगैरह, फादर साहब, किसी को भी कुछ नहीं बोल रहा। जिसको जितना आता है या फिर जो जितना कर सकता है या कर पा रहा है उतना कर रहा है, वो ये चीजें मान लेते हैं, छोड़ो, है ना। जो हम ईपी वीपी की बात करते हैं कि साल में एक ईपी आ सकती है, इतने गाने आ सकते हैं, उन चीज को छोड़ दो बिल्कुल। साल में मान लो सिर्फ 2 ही गाने आ रहे हैं, बेशक एक कमर्शियल टाइप ट्रैक जैसा भी हार्डकोर वगैरह, और एक उसके ऑपोजिट वाला जो रोमांटिक या फिर सोसाइटी से रिलेटेड गाना हो, मतलब 2 अलग अलग टॉपिक के गाने रिलीज कर दिए जाए। लेकिन उन गानों में प्रॉपर एफर्ट्स डाल के उन पे अच्छे प्रमोशंस लगा के रिलीज किया जाना चाहिए। ये बस चाहता हूँ मैं इतना सा। प्रमोशंस तो बहुत अच्छी चीज होती है भाई, बुरे होते हैं जो फेक व्यूज डलवाते हैं, वो चीज अलग होती है। प्रमोशंस तो बहुत अच्छी चीज होती है। बाकी नंबर्स वाली बात सिर्फ स्पॉटिफाई के लिए नहीं है, सेम बाकी प्लेटफॉर्म्स का भी हाल है। तो हम हमारे लेवल पे जो कर सकते हैं वो बता देता हूँ कि लाइक जो स्पॉटिफाई मोड एपी के होता है, एड्स वगैरह नहीं आते, तो पहले मैं भी यूज़ करता था, डोंट वरी। लेकिन एक उपाय बता देता हूँ, एक सॉल्यूशन, कि सिद्धू भाई के लिए तुम ऑफिशियल जो ऐप है उसे यूज़ कर सकते हो या फिर प्रीमियम ले सकते हो, वो तो है ही ऑप्शन, लेकिन उसे यूज़ कर लेना सिद्धू भाई के लिए स्पेशली, और बाकी आर्टिस्टों के लिए, बाकी गाने सुनने के लिए जो मोड एपी है वो यूज़ कर लो। वरना ये सारी चीज़ें भी छोड़ो, डायरेक्ट यूट्यूब पे सुन सकते हैं हम, है ना, ये भी अगर डिफिकल्ट लगता है तो। बाकी जो भाई डाउनलोड करके सुनते हैं वो तो भाई चलो इस चीज़ में काउंट ही नहीं होते, वो तो शुरू डाउनलोड करना बंद कर दो यार, स्ट्रीम करेगा करो बंदे सुनते ही डाउनलोड करके, तो उनका तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे सुन रहे वो सुनो। मैं किसी को भी फोर्स नहीं करता, बस हम इन चीज़ों का ध्यान दे सकते हैं। लेकिन ये भाई बहुत माइनर चीज़ें हैं, मेन है ना वहीं से होंगी जो चीज़ें मैनेजमेंट जिसे कहा जाता है वो कर सकते हैं। वैसे मैंने क्वेश्चन टाइप जोक भी लिखा था कि टेल मी वन थिंग दैट पीपल थिंक्स एग्जिस्ट बट इन रियल इट डज नॉट। अब ऑब्वियसली सिद्धू भाई का मैनेजमेंट है, आंसर तो बहुत कुछ दे सकते हो। हाँ सही गल है, सही गल है, सही गल है। सबको लगता है कि है, लेकिन भाई असल में कोई ऐसा स्पेसिफिक बंदा है ही नहीं कि लाइक करण के मैनेजमेंट में दीप रियान, संदीप रियान, दिलजीत पाजी में सोनाली सिंह, ऐसे सिद्धू भाई के में कोई फिक्स आदमी तो है ही नहीं कि भाई ये मैनेजर है कोई ਮੇਨ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਚੜਾਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਲਜੀਤ ਬਾਈ ਦੇ, ਸੋਨਾਲੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੈਪੋ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਦਲਜੀਤ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ। ਦੀਪ ਰਿਆਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਦੀਪ ਰਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੈਟਲਿਸਟ ਸਟੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ने, सॉरी हाँ, तो उस तरीके ਨਾਲ बहुत ज़रूरी है वो चीज़। होता तो वो इस चीज़ को अपनी बायो में लिख के रखता कि भाई मैं इस आर्टिस्ट के मैनेजमेंट को संभालता हूँ, बट है ही नहीं ऐसा कोई। अब भाई मैं किसी को भी कुछ भी नहीं बोल रहा, जैसा सब चल रहा है चलने दो। बस एक चीज़ कि जब भी कोई गाना रिलीज होता है तो सिर्फ 10-15 दिन की मेहनत उस पर एड्स वगैरह या फिर स्पॉटिफाई वगैरह की लिंक शेयर स्टोरीज में वो कर सकते हैं। मतलब कि जो गाना आ रहा है सिर्फ उस पे एफर्ट्स डालने हैं कुछ दिन के लिए बस, और कुछ भी नहीं करना। बस मैं तो इतना सा बोल रहा हूँ, मैं ना भाई फादर साहब को कुछ बोल रहा, वो यार उनकी लाइफ पहले इतनी मुश्किल है, वो भाई अच्छे से रह रहे हैं, वही बहुत अच्छी बात है, बाकी सारी चीज़ें तो छोड़ो। तो बस भाई मुझे ये स्पॉटिफाई रैप्ड की वजह से इतनी सी चीज़ कहनी थी। अब इस चीज़ को सुन के हो सकता है अगले साल इसे शेयर ही ना करे,
बट हाँ मुझे ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਈ, ਹੋ ਸਕਦਾ। सिर्फ इतना सा कहना था। बाकी हाँ भाई, ये ओजी मूव्स फॉर ऑयल एंड रैप इंडिया टीवी भाई, इन्होंने भी इस चीज़ के बारे में डिटेल में बात करी है, तो इस पोस्ट को ज़रूर जाके चेक करना, वरना मेरी स्टोरी में मिल जाएगी। ਓਕੇ ਬ్రో, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਈ, ਕੱਲ ਵੈਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਐਡਿਕਟ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਘੈਂਟ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਐਡਿਕਟ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਬਾਈ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਰਿਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਟ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਨ ਵਿਸਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਚੋ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੋਚ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ ਫੈਨ ਪੇਜਿਸ ਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਵੀ ਫੈਨ ਪੇਜਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਬਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।